वेलकम गाइस ऑन फार्मर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है प्रोटीन्स, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर बेटर अपडेट्स। लेट्स मूविंग टुवर्ड्स आवर पॉइंट दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मोस्ट वर्सेटाइल माइक्रोमोलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो लिविंग सिस्टम में अनस्टेबल होते हैं एंड सर्व क्रुशियल फंक्शंस इन इसेंशियल ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। दे फंक्शन एज ए कैटलिस्ट, दे ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर ऑक्सीजन, they provide mechanical support and immune protection. They generate movement, they transmit nerve impulse, and they control growth and differentiation. Now, classification of proteins. The following is the whole classification of protein. Please take a screenshot. Proteins are divided into simple proteins, conjugated proteins, and derived proteins. Simple proteins are further divided into globular proteins and scleroproteins, and conjugated proteins is further divided into nucleoproteins, glycoproteins, mucoproteins, lipoproteins, phosphoproteins, chromoproteins, metalloproteins, and derived proteins is further divided into primary and secondary proteins. Now, classification of simple proteins. First, albumins soluble in water, coagulable by heat, and one precipitate at high salt concentration. यानी कि जो अल्बुमिन्स है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और जब उन्हें हीट दी जाती है तब वो कोएगुलेट होते हैं और वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं. Then example, serum albumin, egg albumin, lactate albumin, leucosin, legumelin. And now second is globulins. Globulins are insoluble in water, soluble in dilute salt, one solution, and precipitate by half one saturated salt solution. यानी कि जो ग्लोबुलिन्स होते हैं वो इंसोल्यूबल होते हैं और डाइल्यूट साल्ट में सोल्यूबल होते हैं और प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं. एग्जांपल्स सीरम ग्लोबुलिन, विटेलिन, ट्यूबेरिन, मायोसिनोजेन एंड लेग्यूमिन. देन ग्लूटिनिन्स insoluble in water but soluble in dilute acids and alkalis. यानी कि जो ग्लूटेलिन्स है वो वाटर में insoluble है पर वो soluble है dilute acids में और alkalis में. mostly found in plants. example glutenin and originin. Then fourth one is prolamins, insoluble in water and absolute alcohol but soluble in 70 to 80% alcohol. यानी कि जो है प्रोलेमिन्स है वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं और अल्कोहल्स में सोल्यूबल होते हैं. एग्जांपल्स ग्लाइडिन एंड जीन. Then fifth one is proteamines, basic proteins of low molecular weight, soluble in water, dilute acid, alkalis, not coagulable by heat. यानी कि ये लो मोलिकुलर वेट होते हैं और वाटर में सोल्यूबल होते हैं और वो कोएगुलेट नहीं होते जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है. एग्जांपल सेलेमाइन. देन हिस्टोन्स सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन वेरी डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड. यानी कि हिस्टोन्स जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं पर डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनसोल्यूबल होते हैं. एग्जांपल्स ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन and thymus histones. Then next one is scleroproteins, insoluble in water, dilute acids and alkalis. यानी कि ये scleroproteins insoluble होते हैं वाटर में, dilute acid में और alkalis में. Example keratin which is present in hair, horn, nail, hoof and feathers, and collagen which is present in bone and skin, and elastin which is present in ligament. Now second class is conjugated proteins. In that, first, nucleoproteins composed of simple basic proteins with nucleic acid found in nuclei soluble in water. Example nucleoproteins and nucleohistones. यानी कि जो है न्यूक्लियोप्रोटीन्स है वो सिंपल बेसिक प्रोटीन्स से फॉर्म हुए हैं विथ न्यूक्लिक एसिड और वो न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं. देन नेक्स्ट वन इज लिपोप्रोटीन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स विथ लिपिड्स सच एज फैटी एसिड्स, कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स एक्सेट्रा. यानी कि जो ये लिपोप्रोटीन्स है वो कॉम्बिनेशन है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का. For example of lipids, fatty acids, cholesterol and phospholipids. An example of lipoproteins are lipoprotein of egg yolk, milk and cell membranes, lipoprotein of blood. Then third one is glycoprotein, combination of proteins with carbohydrates. यानी कि जो ये glycoproteins है वो combination है प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का. Example म्यूसिन, ओमुसॉइड, ओसिमुसॉइड, टेंडोमुसॉइड. Then fourth one is phosphoprotein, contains phosphorus radicals as a prosthetic group. यानी कि इसमें फॉस्फोरस रेडिकल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप. एग्जांपल सिजोनेजेन, ओविटेलिन. देन फिफ्थ वन इज मेटल ऑफ प्रोटीन्स, कंटेन्स मेटल आयन इन देयर प्रोस्थेटिक ग्रुप. यानी इसमें मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं एज इट्स नेम इंडिकेट. द मेटल आयन जनरली आर फेरस, आयोडीन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा. एग्जांपल सिडरोफिलिन एंड सेरुलोप्लाज्मिन. देन सिक्स्थ वन इज क्रोमोप्रोटीन विच कंटेन porphyrin that is with a metal ion as their prosthetic group. यानी कि वो porphyrin ऐड होता है
Then example hemoglobin, myoglobin, catalase, peroxidase, cytochromes, and last one is flavoproteins contains riboflavin as their prosthetic group, यानी कि इसमें riboflavin present होता है. Example flavoproteins of liver and kidney. Last classification is derived protein, which is further divided into first primary derivative. In that first proteins derived in the early stage of protein hydrolysis by dilute acids, enzymes और alkalis, यानी कि हाइड्रोलाइसिस के अर्ली स्टेज में ये डिराइव्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल फाइब्रिन फ्रॉम फाइब्रिनोजेन. सेकंड मेटाप्रोटीन्स derived in the later stage of protein hydrolysis by slightly stronger acid and alkalis, यानी कि ये हाइड्रोलाइसिस के लेटर स्टेज में फॉर्म होते हैं बाय स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एसिड्स एंड अल्कलीज. फॉर एग्जांपल एसिड एंड अल्कली मेटाप्रोटीन्स. थर्ड वन इज coagulated. They are denatured proteins formed by the action of heat, X-ray, ultraviolet rays, etc. यानी कि जो है coagulated proteins जो होते हैं वो denaturation की वजह से फॉर्म होते हैं by action of heat. Cooked proteins or coagulated albumins are the examples. Then secondary derivatives, in that first one is proteoses formed by the action of pepsin or trypsin, यानी कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन के एक्शन की वजह से प्रोटियोसिस फॉर्म होते हैं. प्रेसिपिटेटेड बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, यानी कि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं व्हेन रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट. एंड इनकोएगुलेबल बाय हीट, यानी कि हीट से वो कोएगुलेट नहीं होते. एग्जांपल अल्ब्यूमिनोज फ्रॉम अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलोज फ्रॉम ग्लोबुलिन. सेकेंड वन इज पेप्टोन्स, फर्दर स्टेज ऑफ क्लीवेज देन द प्रोटियोसिस, यानी कि क्लीवेज स्टेज है. सोल्यूबल इन वाटर, इनकोएगुलेबल बाय हीट एंड नॉट प्रेसिपिटेट बाय सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, हीट में इनकोएगुलेबल होते हैं एंड प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करते बाय सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन. देन थर्ड वन इज पेप्टाइड्स, कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज पेप्टाइड्स, यानी कि जिस कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम पेप्टाइड्स कहेंगे. दे मे बी डाई, ट्राई एंड पॉलीपेप्टाइड्स. एग्जाम्पल glycyl alanine, leucyl glutamic acid. Then next point is structure of proteins. In that first primary protein structure, the primary protein structure is unique formation, यानी कि ये primary protein structure unique होता है and order to in which the amino acids combines and linked to give us protein molecule, यानी कि amino acids combine होते हैं protein molecule form करने के लिए. Protein gets all its properties from its primary structure, यानी कि proteins जो है वो primary structure से सारी properties लेता है. Then there are in all 20 amino acids in human body. All of these have a carboxyl group and amino group, यानी कि जो अमीनो एसिड्स है वो 20 होते हैं इन ह्यूमन बॉडी और सब में कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है. बट ईच हैज़ अ डिफरेंट वेरिएबल ग्रुप नोन एज आर ग्रुप, यानी कि जो आर ग्रुप है वो सब में अलग अलग होता है. इट इज़ दिस आर ग्रुप दैट लेट्स अ पर्टिकुलर प्रोटीन इट्स यूनिक स्ट्रक्चर. जो ये आर ग्रुप होता है वो पर्टिकुलर प्रोटीन को यूनिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. एवरी प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन्स डिटरमाइन किया जाता है बाय अमीनो एसिड सीक्वेंस. द फॉर्मेशन एंड ऑर्डरिंग ऑफ दिस अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली स्पेसिफिक, यानी कि जो है ऑर्डर होता है अमीनो एसिड्स का वो स्पेसिफिक होता है. इफ़ वी अल्टर इवन वन अमीनो एसिड इन द चेन इट रिजल्ट्स इन नॉन फंक्शनिंग प्रोटीन और व्हाट वी कॉल अ जीन म्यूटेशन, यानी कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो चेंज किया जाए तो जो अमीनो एसिड है वो उसका फंक्शन प्ले नहीं करेगा और जीन म्यूटेशन कॉजेस होगा. Then secondary protein structure. After the sequencing of amino acids, we now move on to the secondary structure. This is when the peptide backbone of the protein structure will fold onto itself to give proteins their unique shape. यानी कि जो पेप्टाइड बैकबोन होता है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है ऑन इट सेल्फ एंड प्रोटीन का यूनिक स्ट्रक्चर शेप प्रोवाइड करता है. दिस फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन हैपन्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप्स अलॉन्ग विद द अमीनो एसिड्स, यानी कि ये जो पॉलीपेप्टाइड फोल्डिंग है वो होती है ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के इंटरेक्शन की वजह से ऑफ पेप्टाइड चेन. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शेप्स formed in the secondary structure. These are first alpha helix. The backbone follows a helical structure, यानी कि जो बैकबोन फॉर्म होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है. द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द ऑक्सीजन बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ हेलिक्स गिविंग इट दिस हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के एटम में वो हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं. नाउ बीटा प्लेटलेट शीट. हियर द पॉलीपेप्टाइड चेन आर स्टैक्ड नेक्स्ट टू द each other and their outer hydrogen molecule form intramolecular bonds to give sheet like structure, यानी कि जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो एक के बाद एक अरेंज होती है और उनका जो आउटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है वो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए उसे शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है. देन नेक्स्ट वन इज टर्शियरी स्ट्रक्चर.
दिस इज द स्ट्रक्चर दैट गिव्स प्रोटीन द 3D शेप एंड फॉर्मेशन, यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को 3D शेप प्रोवाइड करता है. आफ्टर द अमीनो एसिड्स फॉर्म्स बॉन्ड्स एंड शेप्स लाइक हेलिकल्स एंड शीट्स. द स्ट्रक्चर कैन कॉइल एंड फोल्ड एट रैंडम, यानी कि हेलिकल्स और शीट्स फॉर्म होने के बाद जो स्ट्रक्चर है वो कॉइल हो सकता है रैंडमली. दिस इज व्हाट वी कॉल टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इसे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं. इफ दिस स्ट्रक्चर इज डिस्टर्बेड और डिस्टर्ब्ड, a protein is said to be denatured, which means it is chemically affected and its structure is distorted. यानी कि जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है तब प्रोटीन मॉलिक्यूल में डिनेचुरेशन होता है, विच मीन्स जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो केमिकली अफेक्टेड है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है. देन नेक्स्ट वन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. फाइनली वी कम टू द फोर्थ स्ट्रक्चर. द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर पेप्टाइड चेन्स लीड्स टू दिस स्ट्रक्चर, यानी कि 2 या 2 से अधिक पेप्टाइड चेन के अरेंजमेंट इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर प्रोटीन्स टू हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होना प्रोटीन्स के लिए नेसेसरी नहीं है. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल प्रोटीन्स बट द सेम इज नॉट ट्रू फॉर द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर सभी प्रोटीन में प्रेजेंट होता है पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. Hence, if a protein has only the first 3 structure, it is considered to be protein. यानी कि जिस स्ट्रक्चर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे प्रोटीन कंसिडर किया जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स. फर्स्ट वन इज प्रोटीन्स आर द इसेंशियल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस कैरी करने के लिए प्रोटीन्स इसेंशियल होते हैं. सेकंड, दे आर फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्रोटोप्लाज्म एंड आर इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल एंड इन इट्स फंक्शन, यानी कि जो प्रोटीन है वो लिविंग सेल के स्ट्रक्चर में और फंक्शन में प्रेजेंट होते हैं. देन एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. मेनी ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीन्स, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं. द सीमेंट सब्सटेंस एंड द रेटिकुलम विच बाइंड और होल्ड द सेल्स एज टिश्यू और ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, की जो सीमेंट सब्सटेंस होते हैं और रेटिकुलम होते हैं जो सेल और टिश्यू को बाउंड करते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं. Sixth one is they execute their activities in the transport of oxygen and carbon dioxide by hemoglobin and special enzymes in the red cells, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में वो एक्टिविटीज प्ले करते हैं. Now seventh one is they function in homeostatic control of the volume of circulating blood and that of interstitial fluid through the plasma proteins, यानी कि वो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कंट्रोल करने के लिए फंक्शन करते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन में important role play करते हैं. Then eighth one is they are involved in the blood clotting through thrombin, fibrin and other protein factors. blood clotting में involved होते हैं. Then ninth one is they act as a defense against the infection by means of protein antibodies. वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस का काम करते हैं. देन टेंथ वन इज दे परफॉर्म हेरिडिटरी ट्रांसमिशन बाय न्यूक्लियोप्रोटीन्स और द सेल न्यूक्लियस हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के लिए ये यूजफुल होते हैं. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe this YouTube channel for better updates.